हेलो। Yes, my voice is audible. There will be one question from this topic. Now you know equation and inequations, right? Suppose that 3x plus 4y is equals to 10. This is equation. Okay. And suppose that another x plus y is equals to 3. Then you can easily find out its solution by drawing the line. Suppose that this is the solution. It may be 2 and 1. So this is solution of linear equation by graphical method, right? Now what if it is inequation? अगर ये inequation है तो उसके solution set linear equation in two variable. How you can find? You can find it by using this linear programming. Okay. Now without explaining more theory, let us see what is the standard format of LPP. देखो ऐसा होगा, एक suppose that अब मैं company manufacture two type of toys. A toy है first and B toy है second. दोनों बनाने के लिए इनको metal sheet and plastic sheet. Suppose that A toy बनाने के लिए 3 metal sheet लगते हैं और 2 plastic sheet लगते हैं, और B toy बनाने के लिए suppose that 4 plastic sheets and 2 metal sheets लगते हैं, right? And profit after one sale of toy A, you are getting 80 rupees profit, and after selling one toy of B, you are getting 70 rupees profit. So for getting maximum profit, how much number of toys of A and B you have to sell? Suppose that if you are thinking that if I will sell A kind of toy, then I will get maximum profit, but it is not like that, because if you produce all A type, then your metal sheet will get used and plastic sheet will remain. So you have to consider the requirement. What is the minimum availability? Okay, according to that, so you will get 3x plus 2y. Okay, number of metal sheets available, suppose that 120 and this 140. Okay, likewise you can frame the inequations, and after solving inequations by graphical method, you will get the exact number for which getting maximum profit. Understood? So this is the main thing of learning this topic. So what is the format of LPP? I think this is clearly visible. जनरल फॉर्मेट में होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है स्टार्टिंग में z is equals to ax plus by. Suppose that z is equals to 3x plus 2y. यहां पर मैक्सिमा पूछा है, मैक्सिमम, मैक्सिमाइज. Constraint दिए 3x plus 2y is less than or equals to 7, 9x plus y is greater than or equals to 5, x is greater than 0, y is greater than 0. This is the standard format here subject to. Okay, तो इसमें ये जो है फर्स्ट z is equals to, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है उसे. नेक्स्ट
these are constraint. ये जो है ना यहाँ पर इनइक्वेशंस हो गए, एक तो लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू. सो जितने भी कंस्टेंट है, कुछ में एक होगा, दो होगा, तीन होगा, दैट और हाउ मेनी कंस्टेंट आर देयर, दैट नंबर ऑफ लाइंस यू हैव टू ड्रॉ. ओके, लेस देन का मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन का मीनिंग क्या है, पहले बताइए. देखो, फर्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन this less than and greater than meaning, but this is z is equals to, this is called as objective function, these are constraint, and x greater than 0, y greater than 0, this is bottom line, last part. It indicates that your solution set is in first quadrant, that is called as non-negative restriction. So three things are there: objective function, constraint, and non-negative restrictions. You have to plot the graph of only this constraint, सिर्फ constraint का ही ग्राफ प्लॉट करना होगा आपको. See, I will use black pen now. Suppose that एक क्वेश्चन दिया है, maximize z is equals to 3x plus 7y subject to 3x plus 4y is equals to 10. Oh, sorry, less than equals to. Then same question, 2x4 plus y is less than equals to 5. One minute, one phone call was there. And again, x is greater than 0, y is greater than 0. This condition is given. So I have to draw the graph of this constraint only. So this is my x-axis, this is my y-axis. Okay. Now 3x plus 2y. For drawing graph or line, I will ignore this inequality. So 4x, 3x plus 4y is equals to 10. If I will consider, then I will get the values of x and y. If we'll put x is equals to 0, if we'll put x is equals to 0, then you will get y as 5. If you'll put y is equals to 0, then you will get in fraction. Okay. If you put y 0, then 3.3 something. Okay. So x and y intersect, you will get indirect. So 0, 5, x is 0, y is 5. So it may be here somewhere. And second, if y is 0, if y is 0, 3.3. So you have to draw a line. Now इसका मीनिंग क्या है, देखो, लेस देन अगर होगा, लेस देन मीन्स टुवर्ड्स द ओरिजिन. अगर ये होगा लेस देन मीन्स टुवर्ड्स द ओरिजिन, एंड ग्रेटर देन होगा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन. सो दिस इज लेस देन मीन्स ये लाइन के दो पार्ट में डिवाइड हो गया. फर्स्ट टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड अवे फ्रॉम द ओरिजिन. सो लेस देन मीन्स टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये आपका इधर इसका सॉल्यूशन सेट आएगा, राइट. सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, 2x plus y is equals to 5. If you put x 0, then you will get y 5. If you put y 0, 2.5. So 0, 5, x 0, y 5, again the same point. Then 0 and 2.5, 0 and 2.5 may be here. So this is the second line. Again, this is towards the origin. Here it indicates towards the origin. So the solution set of this is this. Now last, this is non-negative restriction. Non-negative restriction means first quadrant में.
Sir, y is not 5. Okay. Y is not 5. For where x 0, y 5. Here x 0. Okay. Y 5. Which y is not 5? For which? Aditya? Yes. Any doubt? सी अगर यहां पर डालोगे ओके 3x प्लस 2y ओके लेट इट बी मैं इधर ही 2y कर रहा हूं चलो क्वेश्चन आई एम चेंजिंग देन आंसर आल्सो आई विल गेट चेंज ओके चलो अगर ये 4 होता देन दिस 4 x is 0 then y is 10 by 4 is 2.5 right and if y is 0 then it will get okay so 2.5 so whatever suppose that I have taken one random example so suppose that two lines are there and again one non-negative restriction so this is the shaded part so your answer is in this area this is called as feasible area and these are the corner points 1 2 and 3 so the corner points you have to find answer of this objective function here at corner point so the corner point z at a क्या है आपका ये 0 0 suppose that this is a 0 0 suppose that this is b suppose that let us consider 0 2.5 0 and this is 0 5 so z at a 0 0 I know that I have taken instead of 4 I have taken 2 let it be so whatever your answer getting that is 3 into 0 plus 7 into 0 it will be 0 z at b z at c so z at b suppose that 2.50 so 3 into 2.5 plus 0 so it will be 7.5 and the last 0 5 it will be 3 into 0 plus 7 into 5 that will be 35 so this 35 is maximum so z is maximum at 0 5 and maximum value is what 35 so this in this way you have to solve okay sir origin will be corner point yeah see in this feasible region here it is origin one point this and this there may be few examples where you will get another kind of solution set कभी कभी ऐसा भी आ सकता है सपोज दैट ये एक लाइन है ये दूसरी लाइन है एंड सपोज दैट दिस तीसरी लाइन है ओके सो सपोज दैट कभी कभी आपका एक कॉमन इंटरसेक्शन ये भी आ सकता है इसमें ओरिजिन नहीं है सो ये कॉर्नर पॉइंट ये कॉर्नर पॉइंट ये कॉर्नर पॉइंट कभी कभी आपका ये भी रीजन आ सकता है इसका ये रीजन है और इसका ये है सो दिस आल्सो दिस इज नॉट बाउंडेड बाउंडेड नहीं है ये राइट सो अनबाउंडेड तो इसका कॉर्नर पॉइंट ये रहा ओके कभी कभी इस टाइप का भी आएगा आपको सो इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एग्जांपल्स अंडरस्टूड सर वी कैन कंसिडर ओरिजिन एवरीवेयर वेयर पॉसिबल देखो बेटा मिनिमा के क्वेश्चंस के लिए जनरली ऐसा क्वेश्चन आते हैं जिसका सॉल्यूशन सेट ये आएगा ना ये सेट का अगर आपके फिजिबल रीजन में ये आ रहा है देखो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 इट कम इसका मीनिंग ये नहीं कि ऑलवेज ओरिजिन आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो सपोज दैट अनदर एग्जांपल हाँ x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो बस सो इसका ये है इसका ये है सो यहाँ पर ओरिजिन तो कॉर्नर पॉइंट नहीं आ रहे ना अंडरस्टूड because we didn't do so in board so everywhere consider origin everywhere नहीं हमेशा origin क्यों consider करोगे
पहले ग्राफ बना दो, ग्राफ बनाने के बाद आपको कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे कॉमन एरिया में, हमेशा ओरिजिन आएगा ऐसा नहीं है। अंडरस्टूड? ठीक। नाउ नेक्स्ट, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, फिजिबल रीजन तो मैंने बताया, वेट, सॉल्यूशन सेट है ऑफ एलपीपी, फिजिबल रीजन ये भी मैंने बता दिया, राइट? A solution which also satisfies the non-negative constraint x greater than 0, y greater than 0 is called as feasible solution. The set of all feasible solution is called as feasible region. वो जो शेड किया था वो feasible region है. Optimal solution, the feasible solution which optimize the objective function z is called as optimum solution. Optimum solution means अगर क्वेश्चन में मैक्सिमाइज पूछा है तो कौन से पॉइंट के लिए मैक्सिमम सॉल्यूशन आता है, दैट इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन, राइट? अगर क्वेश्चन में मिनिमा पूछा है z, तो कौन से पॉइंट के लिए मिनिमम सॉल्यूशन आता है, दैट इज द मिनिमम सॉल्यूशन. सो हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर? देयर मे बी 1 or 2 क्वेश्चंस. क्वेश्चंस आर वेरी इजी, एक ही कांसेप्ट है, सिर्फ ग्राफ बना के फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है, एंड पॉइंट z में डालना है. Whatever, if in question मैक्सिमा पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी, मिनिमा पूछा है तो मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी, उतना डालना है. सो ओनली वन कंसेप्ट इज देयर इन दिस चैप्टर, एक ही कंसेप्ट पे क्वेश्चंस है. अंडरस्टूड? एक क्वेश्चन लेंगे, जब एमसीक्यू करेंगे तब और भी एक्सप्लेन करूंगा मैं एग्जांपल्स. ओके, नाउ व्हाट इज कॉन्वेक्स सेट्स? कॉन्वेक्स सेट्स क्या होता है? देखो, कोई भी एक, सपोज दैट ये प्लेन है, इसमें ट्रायंगल अगर मैंने ले लिया, ट्रायंगल का कोई भी 2 पॉइंट ले लो, इफ यू आई टेक एनी 2 पॉइंट, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, इफ आई ज्वाइन दिस लाइन सेगमेंट ए बी, तो ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने के बाद हर एक पॉइंट वो लाइन सेगमेंट का फिर से उसी फिगर में या उसी शेप में के अंदर सब पॉइंट है, देन दैट इज कॉल्ड एज convex sets. So if I joined any 2 point from the particular set and all the points line joining the segment AB, if all the points are in again the same set, then it is called as convex set. Convex set नहीं है ऐसा कौन सा है? देखो, ये suppose that I have taken this ABCD. So एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर लेने के बाद एक जो मेरे पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट AB के, सपोज दैट PQ के लाइन सेगमेंट मेरे इस शेप के बाहर जा रहे, सो दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट. अंडरस्टूड? सो आई थिंक यू गॉट द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्वेक्स सेट. चलो नेक्स्ट, इज इट विजिबल? दिख रहा है? एक मिनट, is it visible? Now see, मुझे बताइए, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट दिया है, राइट? ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस है और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपका? मींस इनडायरेक्ट इसने ये कहा है मैक्सिमम वैल्यू. सो मैक्सिमाइज z is equals to 3x plus 2y subject to 3x plus 2y. Don't write for explaining, I am writing here. Means explanation देने के लिए मैं लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में नहीं करना है. Okay, subject to x plus y is less than 2 and x is greater than 0, y is greater than equals to 0. So how many constraint are there? Only one constraint is there. एक ही constraint है आपका, मींस एक ही लाइन ड्रॉ करना है आपको. तो देखो यहाँ पर x y एक्सिस मैंने प्लॉट कर दिया,
x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के पहले x0 डाल दो, y0 डाल दो. इफ आई पुट x is equals to 0 then I'll get y is equals to 2. So y2 मुझे इधर मिल गया. So it will be 0, 2. If I'll put y0 then x2. So y0 x2. So this is the line. अब मुझे बताइए लेस देन 0 है मींस टुवर्ड्स द ओरिजिन है. टुवर्ड्स द ओरिजिन है मींस ये यहाँ पर सॉल्यूशन सेट हो सकता है. बट अगेन लास्ट क्या दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x greater than 0 y greater than 0. फॉर एवरी LPP you will find this case. नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन मींस आपका सॉल्यूशन सेट पहले ही क्वाड्रेंट में है. इसका मतलब आपका शेडेड पार्ट कौन सा होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना ही. दिस इज योर फिजिबल रीजन. अब यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से है, ये 0 0 पहला कॉर्नर पॉइंट, 0 2 और सॉरी x0 y2, here x2 y0, x2 y0. So this is A, this is B and this is C. So z at 0 0 क्या आता है आपका, 0 0 पे तो 0, 3 into 0 plus 2 into 0, so it will be 0. Z at B, z at B क्या है 2, 0, so it will be 3 into 2 plus 2 into 0, it will be 6. And z at C, it will be 0, 2, 3 into 0 plus 2 into 2, so it will be 4. So maximum कहां पर आ रहा है, z at B. Understood? So z is maximum at 2, 0 and maximum value कितना है 6. तो यहां पर आपको पूछा है सब्जेक्ट टू दिस एंड पॉइंट पूछा है. सो पॉइंट कौन सा है मैक्सिमम के लिए, 0, 2 x, sorry 2, 0. So the option C is correct. Okay. आपको ये पूरा नहीं करना है, फास्ट भी कर सकते हो. सर क्वेश्चन में हर बार लेस देन और इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेगा या सिर्फ, हाँ. नाइस क्वेश्चन. वन बॉय ही आस्क मी, सर क्वेश्चन में लेस देन और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रहेगा क्या, हमेशा कंस्ट्रेंट के लिए और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन के लिए लेस देन और इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ये रहेगा ही. सिर्फ ये नहीं होगा, सिर्फ ऐसा नहीं होगा लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये पूरे टॉपिक में आपको कंस्ट्रेंट और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन में यही रहेगा. इट मींस इंक्लूडिंग दिस पॉइंट आल्सो. ये पॉइंट इंक्लूड है, ओपन नहीं है, ये क्लोज है. अंडरस्टूड, समझा? ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड वाला क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, वो पहला इंपॉर्टेंट है. नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू, मिस मैक्सिमा पूछा है सब्जेक्ट टू, यहां पर ये कंस्ट्रेंट दिया है और ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस दिए है, राइट. नाउ अभी ये फास्ट कैसा करोगे तो आपको पता ही है. देखो अगर मैं x को 0 डाल देता हूं, सो आई विल गेट y इज इक्वल्स टू 2.5, राइट. x0 y 2.5. if I'll put y0 then x will be 10/3. y0 डाल दूं तो x will be 10/3. okay, so subject to this. ठीक है. अभी हमें क्या मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस पॉइंट डायरेक्ट भी डाल सकते हो, राइट. सो z इज इक्वल्स टू, अलग अलग दो डालने की जगह x इंटरसेक्ट और y इंटरसेक्ट डायरेक्ट भी सब्जेक्ट क्वेश्चन में डालोगे तो भी आपको आंसर मिल सकता है. अदरवाइज if we'll simplify this as z is equals to, if we'll take phi as common factor, then it will be again 3x plus 4y. और 3x plus 4y का आपको तो वैल्यू पता है, it is 10, so it will be 50. The answer is B. ये एक मेथड हो गई. दूसरी मेथड, अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, so z at a तो 0 0 इसकी निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि मैक्सिमम पूछा है. so z at b क्या है 10/3, so it will be 15 into 10/3 plus ये तो 0 ही आ रहा है, so it will be 5 3 50. और z at इस पॉइंट पे c क्या आ रहा है, z at c will be 15 into 0 plus 20 into 2.5.
So again it is 50. Understood? It means ये दोनों पॉइंट पे आ रहा है, मींस ये पूरे पॉइंट पे एक ही सॉल्यूशन सेट दे रहा है. So the answer is 50. Now next. Maximum value for this. This is objective function. These now here constraint दो दिए हैं. अब ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं. देखो 2x plus y is equals to 30 अगर कंसिडर करते हो तो x and y will get directly you can put. If you put x0 y 30, x0 y 30. If I'll put y0 x15, x15. So this is my first line. तो पहली लाइन क्या है? लेस देन इक्वल्स टू मींस टुवर्ड्स द ओरिजिन है सॉल्यूशन इसका. ओके, नेक्स्ट लाइन x में 0 डालो y12 आएगा. x0 y12, x0 y12. It may be here. And if I'll put y0 x24. So this is second line. Understood? इसका फिर से लेस देन है, मींस टुवर्ड्स द ओरिजिन है. मुझे बताइए कॉमन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों का फिजिबल रीजन कौन सा आएगा? मैं रेड पेन से इंडिकेट कर रहा हूं. सो दिस इज द फिजिबल रीजन जिसके कॉर्नर पॉइंट है 0,0, राइट. देन 15,0 हियर 0,12. बट इसका कॉर्नर पॉइंट कैसे निकालोगे? इसका कॉर्नर पॉइंट के लिए आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा. सो इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए देखो ये तो ऑलरेडी ग्राफ पे थे, राइट. इसका कॉर्नर पॉइंट के लिए आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा. सो 2x plus y is equals to 30 and x plus 2y is equals to 24. इक्वेशन बना के सॉल्व करो. If I'll multiply this equation by 2, then you will get 2x plus y is equals to 70 and 2x okay plus 4y is equals to 48. 2x plus y is equals to 30 आएगा ना? अच्छा 30 है ये. हाँ. ठीक. ओके. नाउ so it will be minus 2y is equals to minus 18, y is equals to 9, right. y का वैल्यू 9 है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? दिस गिव्स सर मेरे को y का वैल्यू 6 आया है क्योंकि 2x plus y था ना जो फर्स्ट इक्वेशन था. अच्छा 2x plus y, right. तो 3y equals to 18 yeah 6. So y is 6. If you put y 6, then x plus 12 is equals to 24. So x will equals to 12, right. 12 and 6. 12 and 6, right. So this is 12,6. अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम पॉइंट. सो मैक्सिमा z एट देखो 0 0 पे तो निकालने की जरूरत नहीं है. ये पॉइंट पे निकालेगा तो x में 15, राइट. 15 अगर 15 इंटू 6 इंटू 15 90 आएगा ये पॉइंट पे. सो फर्स्ट वाज 0, सेकंड वाज 90, थर्ड के लिए 12,6 अगर आप रखोगे तो 6 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 6 72 प्लस 48. So it will be 8 9 10 carry 1 5 12 10 11 12, right. 120 बराबर है. So इसके लिए 120 आ रहा है. ये पॉइंट के लिए 120 आ रहा है. ये पॉइंट के लिए 90 आ रहा था. ये पॉइंट तो 0 था और ये पॉइंट लास्ट वाला 96 आ रहा है सर उसका. या ये वाला 96 आ रहा है लास्ट वाला. यस सर.
तो मैक्सिमम वैल्यू 120 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू इज 120। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो 120, कहां पर, तो विच पॉइंट, एट विच पॉइंट दिस गिव्स मैक्सिमम, मैक्सिमा या मैक्सिमम सॉल्यूशन कहां पर देगा, अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट पूछा है तो 12,6 आएगा। अंडरस्टूड? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, कैन यू सॉल्व दिस फोर्थ वन? Solve this fourth and fifth. Okay, one boy is telling sir, do not use blue pen. Okay, I will not use blue pen. Sir, both the graphs are on the exciting, okay, intersecting. Yes, they will intersect and you have to find the point of intersection. Okay. Always it is not necessary that they will intersect. There may be 3 lines also. There may be 2 parallel lines, but their feasible solution you will get. Suppose that एक ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, एक पहली लाइन ये है जिसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, सेकेंड लाइन इसी को पैरेलल है, इसका भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो मुझे बताइए इसमें फिजिबल रीजन क्या आएगा? फिजिबल रीजन ये रहेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, सो दिस इज द फिजिबल रीजन। अंडरस्टूड? 2 पैरेलल लाइन है बट दोनों का अवे फ्रॉम द ओरिजिन दिया था, सो कॉमन एरिया भी आ रहा है बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो दिस इज द वन कॉर्नर पॉइंट एंड दिस आर, this is extending. So in this such kind of question they will ask you minima पूछेंगे इसमें, क्योंकि मैक्सिमम तो आगे किधर भी जा रहा है। So I think that kind of question is this, फिफ्थ वाला उस टाइप का होगा। So solve fourth and fifth. फोर्थ का बी, ओके, फिफ्थ का ठीक है, फोर्थ का बी, फिफ्थ का क्या आ रहा है? सी आ रहा है सर। सी आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। फिफ्थ वाला पैरेलल लाइंस आ रहे हैं, लेट्स सी दिस फोर्थ। पहला मैं फोर्थ बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, कंस्ट्रेंट दिए है, राइट? तो 2 कंस्ट्रेंट दिया, अभी पहले एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने स्लो लिया था, अभी फास्ट करेंगे। देखो x0 डाल दो, y आएगा 1, x0 है, y1 है, y0 डाल दो तो x -1, y0 डालने के बाद x -1 मीन्स यहां पर आ रहा है। So if you join, then you will get this line, ये लाइन मिलेगी। अभी क्या दिया है? लेस देन मीन्स टुवर्ड्स द ओरिजिन है, इधर है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कंसीडर होगा आपका बाद में। नेक्स्ट, इफ विल पुट हियर x0 y0, x0 y0 means here, if you put y0 then x is also again 0, okay? और उसका साइन चेंज कर सकते हैं ना, x -y किसका वही क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में सो x is equals to y आएगा ना, सिंपल x is equals to y, ये लाइन है, x is equals to y के लिए 0 0 1 1 ये पॉइंट ले सकते हो ना, 1 1 2 2, राइट? x is equals to y सिंपल है, सो whatever x that is y, सो दोनों भी वही है।
अभी इसका भी क्या है, टुवर्ड्स द ओरिजिन ही है, मीन्स यही रीजन है। सो कॉमन इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ये वाला, जिसका एक पॉइंट है 0 0। ओके, सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ही इज आस्किंग, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, बाउंडेड तो नहीं आ रहा, अनबाउंडेड है। सो ये तो 0 0 है, तो सॉरी ये कॉमन पॉइंट 1 1 से शुरू हो जाएगा ना, एक मिनट, ये 1 1 से शुरू हो जाएगा, राइट? अच्छा 0 0 भी आ रहा है, 0 0 है, 1 1 है, राइट? सो यही आएगा कॉमन पॉइंट। आंसर में क्या दिया है, 4 + 7 दिया है क्या आंसर, 7 अगर होगा तो 1 1 है। So the answer is 4, and I think one constant. Both are less than 0. Both are less than 0. The solution region has vertex 0, 1. एक्चुअली ये जो साइन दिया है ना, ये साइन ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन में ये साइन ऐसा होना चाहिए, देन यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन में ऐसा ही साइन होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन में रॉन्ग साइड दिया है, अगर लेस देन लोगे तो नहीं आएगा, अगर ये साइन अगर लेते हो आप, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। देन यू विल गेट, पहला पॉइंट तो आपका ये आ रहा था, दूसरा पॉइंट ये आ रहा है, राइट? सो अगर लेस देन ग्रेटर देन दिस अगर होगा तो पहले का सॉल्यूशन यहां पर आएगा, दूसरे का भी सॉल्यूशन यहां पर आएगा, राइट? सो दोनों को कॉमन पॉइंट ये आएगा, राइट? सो दिस इज द वर्टेक्स, सो दिस इज नथिंग बट x0 y1, so z at 0, 1, that is 3 into 0 plus 4 into 1, and the answer is 4, which is correct option. So यहाँ पर चेंज कर दो, ये साइन उल्टा दिया था टेक्स्ट बुक में, अपना मार्वल बुक में। ओके ठीक है, सर लेकिन वो मिनिमम वैल्यू है ना, बात साइड ले लिया था। अच्छा मिनिमम पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू है ये, 4 तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा आप जो बोल रहे हो। ओके ओके ओके, वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, राइट? मैक्सिमम वैल्यू, then it should be minimum value, right? So let it be. Solve this question, fifth वाला, fifth solve करो। सर नॉट एनक्लोज द पोर्शन में, सर सी ऑप्शन आया फिफ्थ का। फिफ्थ का सी, ठीक है देखते देखो, फिफ्थ में ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दीज आर कंस्ट्रेंट, राइट? सेम वे x0 डाल दो, y मिल जाएगा 10, x0 y10, y0 x0 सॉरी x0 y20, x0 y20, y0 x10, नेक्स्ट यहां पर x0 डाल दो, y10, x0 y10, पहला ये लाइन था, दोनों का टुवर्ड्स द ओरिजिन ही है, सो दिस वाज 0 10, इफ यू पुट y0 then x20 20,0, राइट? सो दिस वाज द सेकंड। अब मुझे बताइए पहले का भी टुवर्ड्स द ओरिजिन था, राइट? ये, और दूसरे का भी टुवर्ड्स द ओरिजिन ही है, मींस ये। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
सो सबका कॉमन पॉइंट फिजिबल रीजन ये आएगा. अंडरस्टूड? दिस इज द फिजिबल रीजन. अब इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं? ये पहला कॉर्नर पॉइंट 0,0, ये सेकेंड कॉर्नर पॉइंट 0,10, राइट? ये 10,0 और ये कॉर्नर पॉइंट जो है, ये कॉर्नर पॉइंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय सॉल्विंग इक्वेशन. मैक्सिमा पूछा है, सॉल्व करना पड़ेगा. सो आई एम सॉल्विंग हियर 2x plus y is equals to 20. इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से. So 2x plus 4y is equals to 40. If I'll subtract, then I'll get minus 3y is equals to minus 20. So y is equals to 20 by 3 आ रहा है और x is equals to, right? क्योंकि 2x plus y is equals to 20 and 2x plus 4y is equals to 40, right? 2 से मल्टीप्लाई किया. So x will be what? y अगर 20 by 3 है, y अगर 20 by 3 है तो x क्या आएगा? So x आएगा 20 by 3. So 2x plus 20 by 3 is equals to 20. So 2x is equals to 20 minus 20 by 3. That will be 60 minus 20, 40 by 3 upon 2. So x will be 40 by 3 into 2 denominator में. So 20 by 3. So 20 by 3. X और y 20 by 3, 20 by 3 ही आ रहा है. Now the maximum of this point. तो मैक्सिमम कहां पर आएगा? 20 by 3 अगर सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर 0 0 पे तो 0 आएगा. 10 0 0 10. 10 0 पे रखोगे, 10 0 पे रखोगे तो p क्या आ जाएगा? 10. अगर 0 10 पे रखोगे तो p क्या आ जाएगा? 30. और 20 by 3 पे रखोगे तो 20 by 3 plus 20 by 3. So it will be 20 by 3 plus 20. So it will be क्या आ रहा है? 60. 60. 80 by 3. So again it is something. So 20, 30 के तो छोटा ही आ रहा है, right? 80 by 3 means 30 तो नहीं होगा, 30 होगा तो 90 आ सकता था. So means 20 और 29 के बीच में है. 26.6. So maximum कहाँ पर है? ये पॉइंट पे जो कि है मेरा 0,10. So z is maximum at 0,10. And maximum value पूछा है, the maximum of this such. So the maximum value कितना आएगा? 30. So the C option is correct. Understood? Maximum value पूछा था. Okay. Yes. Understood? One boy he has written 20 by 3 ही आएगा. 20 by 3 कैसे आएगा बेटा? 20 by, क्योंकि ये 0,10 पे 30 वैल्यू आ रही है ना, तो मैक्सिमम यहाँ पर हो गया ना. सो फिफ्थ का आंसर सी है. यस करेक्ट है फिफ्थ का. ठीक. नेक्स्ट, कैन यू सॉल्व दिस सिक्स्थ वन? सिक्स्थ सॉल्व करो. Solve the sixth one. Look this. Question number 6. The point which provide the solution out to the LPP maximize. Maximum solution कौन से point पे देता है? This is objective function subject to. Now here constraint are 1, 2 and 3. There are 3 constraints, right? So you have to plot the graph of all 3. पहले में x0 डाल दो.
y मिल जाएगा 4.5. So x0 y 4.5. y0 डाल दो x 4.5. राइट. नेक्स्ट सेकेंड में x0 डाल दो y7. This was my first line. So x0 y7. अगर y0 डालोगे 3.5. 3.5 यहां पर रहेगा. Next. Is it visible? Yes. Now, if I'll put x0 y4. x0 y4 मीन्स यहां पर आएगा. सेकेंड लाइन भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं. राइट. दोनों तीनों का भी एक ही है. लेस देन m is towards the origin है. Origin ही है x0 y4. So 0 4. Then y0 x8. y0 x8. 8,0. So this is my third line. अभी तीन कहां पर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं देखो. राइट. So but the third line is here. Now you tell me, सब में फिजिबल रीजन कौन सा आएगा? तीनों में भी ये फिजिबल रीजन है आपका. अगर ये ट्रायंगल ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है आप देख लेना. अगर ट्रायंगल नीचे बन रहा है तो ये फिजिबल रीजन आएगा. इसके कॉर्नर पॉइंट है ये 1, ये 2, ये थर्ड एंड दिस फोर्थ. इफ इट इज लाइक दिस, अगर आपका ट्रायंगल ऐसा आ रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहे हैं, राइट, देन देयर विल बी 4 कॉर्नर पॉइंट. 1 2 3 4 और 5 कॉर्नर पॉइंट होंगे. राइट. So put the value of corner point, you will get the answer. 7D not defined. 7D not defined. 7th का D not defined. Okay. 6th वाला क्या है बेटा? 6th वाला क्या आया? Have you solved 6th? 6th का आंसर बताइए. 6th का D. ठीक है. 6th का D आ रहा है 1 and 3.5. मीन्स यहाँ पर कोई तो पॉइंट है 1 और 3.5 जिसका लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आएगा. राइट. सो दैट इज योर पॉइंट वेयर यू आर गेटिंग दिस मैक्सिमम सॉल्यूशन. सो 7th वाला नॉट डिफाइंड कैसे है वो देखो. अलग कई अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसका आंसर नॉट डिफाइंड है. सी maximize this point subject to this is the first, this is second, so 2 constants are given. right. x अगर आप 0 डालोगे तो y आएगा 6. अगर y 0 है then x 9. Now here x0 y10 y0 x10, so 10 10, here 10 and here again 10 means ऊपर ही है. राइट. ये अलग ऊपर जाएगा. नेक्स्ट. ओके 10 10 है ना. तो फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का है टुवर्ड्स द ओरिजिन. सेकंड का है अवे फ्रॉम द ओरिजिन. सेकंड का अवे फ्रॉम द ओरिजिन है. फर्स्ट का टुवर्ड्स द ओरिजिन ये आएगा. सेकंड का अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये आएगा. मुझे बताइए दोनों में कॉमन पॉइंट है कोई? नहीं है क्योंकि कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं. दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड. ओके अंडरस्टूड. नाउ 8 का सॉल्व करो. सॉल्व 8 and 9. Feasible region not defined.
सिक्स का डी, एट का बी, एक ग्लास बस। 8 का बी दे रहे हो, 8 का बी 140, दो कंस्टेंट दिए हैं राइट, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी दिए है, दोनों का ग्राफ बनाइए, कहां पर मैक्सिमम आ रहा है, मींस मैक्सिमम सॉल्यूशन क्या है उसका, वो पूछे। सर सिक्स्थ का कैसे निकला एंड में, ओके सिक्स्थ यू आर आस्किंग, अच्छा ये वाला देख बेटा, तेरे पास तो लाइन आए थे, एक मिनट, सिक्स्थ वाले में ऐसा आ रहा था हमें राइट, एक लाइन इस टाइप के लाइंस थे, 3 लाइंस थे राइट, और एक ट्रायंगल बन रहा था किधर, तो ये कॉर्नर पॉइंट रख दिया हमने, डोंट वरी इसका सॉल्यूशन मैं सेंड कर दूंगा, कॉर्नर पॉइंट डाल दो आंसर मिल जाएगा। फिजिबल रीजन आई डिडंट गेट, बताओ सिक्स्थ वाला, ठीक है। सी सिक्स्थ क्वेश्चन आई एम वंस अगेन एक्सप्लेनिंग, उसके लिए मुझे एग्जैक्ट लेना पड़ेगा अभी। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ग्राफ थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ, पहला ये था 4.5 4.5, सो ये सपोज दैट ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, व्हाई आई एम ड्राइंग, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट चाहिए। सो 4.5 था मेरा पहला, 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 4.5 चलो यहाँ पर है, और यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 4.5 यहाँ पर है राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या था, x0 डाल दो तो y7, 7 था 4 5 6 7 यहाँ पर था, और सेकेंड पॉइंट था 3.5 3.5 यहाँ पर था। सो दिस वाज द सेकेंड वन, अंडरस्टूड। थर्ड क्या था, x0 है y x0 है तो y4 है, x0 है तो y4 है, ये यहाँ पर था, और y0 है तो x8 है, दिस इज 4 5 6 7 8 8 यहाँ पर है राइट। तो मुझे बताइए ये लाइन यहाँ पर ऐसी आएगी, नाउ यू विल गेट द आंसर, ओके। तो मुझे बताइए तीनों में कॉर्नर, तीनों का इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट है, देखो तीनों में भी टुवर्ड्स द ओरिजिन है, तो यहां से ये पार्ट आएगा जिसके की कॉर्नर पॉइंट, पहला कॉर्नर पॉइंट ये है 3.5 0 राइट, वो तो 4.5 था, ये तो 0 0 था, और ये वाला क्या था 4.5 पहला राइट, सो 0,4.5 था। और ये पॉइंट कैसे निकालोगे, देखो ये पॉइंट निकालने के लिए दिस वाज लाइन 1 और 4.5 4.5 तो लाइन 2 था, ये दिस वाज लाइन 3, ये लाइन 3 था, ये लाइन 2 था, लाइन 1 था, एंड दिस वाज लाइन 2। सो आपको सॉल्यूशन सेट निकालना पड़ेगा ये पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, कौन से दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन, तो ये दो लाइन का इंटरसेक्शन मींस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा राइट। ब्लू नहीं दिख रहा है, चलो ओके, सो ब्लू नहीं दिख रहा है तो देखो ये वाला है, यहाँ पर 0,0, यहाँ पर 3.5, 0, अंडरस्टूड, यहाँ पर 0,4.5, यहाँ पर फर्स्ट लाइन आपका था ये थर्ड लाइन था, और ये लाइन 2 था। नाउ इट इज क्लियर, अब ठीक है, ब्लू अभी मत, ब्लू मैं यूज ही नहीं करूंगा, ओके। सो आपका जो इंटरसेक्शन है ये है, दिस इज द फिजिबल रीजन वेयर 0 0 एक पॉइंट था कॉर्नर पॉइंट, दूसरा पॉइंट था 3.5, 0। अब दो जो पॉइंट है ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये लाइन 2 और लाइन 1 का इंटरसेक्शन,
लाइन 2 और लाइन 1 सॉल्व करोगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, और लाइन 1 एंड लाइन 3 सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट मिलेगा. सो यू आर गेटिंग दिस 1 कॉर्नर पॉइंट, सेकेंड कॉर्नर पॉइंट, थर्ड कॉर्नर पॉइंट द इंटरसेक्शन आएगा, फोर्थ कॉर्नर पॉइंट भी इसका है, एंड फिफ्थ कॉर्नर पॉइंट 0,4.5. सो 1 2 3 4 5 कॉर्नर पॉइंट में से एक आंसर रहेगा. ओके, नाउ अंडरस्टूड सर, गॉट इट, थैंक यू. ओके, नेक्स्ट चलो 8th वाला. 8th सॉल्व करो. 8th तो हो गया होगा, 9th भी सॉल्व करो. सॉल्व 8th एंड 9th. ओके, वन बॉय इज आस्किंग सर कौन से दो लाइन का इंटरसेक्शन लिया है. देख, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं मुझे बता. ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन. तो मुझे पता ये जो है, सपोज दैट दिस वाज फर्स्ट लाइन, ये ऊपर वाली सेकंड लाइन थी और ये थर्ड वाली लाइन थी ना. तो मुझे पता ये पॉइंट है, ये पॉइंट के लिए कौन से दो लाइन, L3 और L2 पॉइंट हो रहा है ना. तो L3 और L2 इनका इंटरसेक्शन है, इनका सॉल्यूशन सेट क्या है. लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा इनका. और ये कौन सी लाइन है, L1 एंड दिस L1 एंड L2, L1 एंड L2. ये इंटरसेक्शन नहीं है, ये कॉमन पॉइंट सॉल्व करने के बाद है. अंडरस्टूड. हाँ सर, पर वही कि उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, एक्यूरेट ग्राफ. ग्राफ बनाना पड़ेगा. यस, रफ ग्राफ बनाना पड़ेगा. यस, ठीक है. नेक्स्ट सॉल्व करो दिस 9th वाला. I think now you understood there is nothing in this topic, only you have to find the lines whether in less than 0 or greater than 0, then find the feasible region, take the corner point, put in the objective function. If maxima is asked, then find out which point is given maxima and which point is given minima, and select the option. That is the thing, only thing you have to do in this topic. अब बाकी कुछ भी नहीं पूछा है, बस इतना ही है ये टॉपिक. मैट्रिसेस लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था. नेक्स्ट लेक्चर में लाइन प्लेन लेंगे. ओके, अभी भी कंटिन्यू, लेक्चर तो कंटिन्यू है, डोंट वरी. लेक्चर अभी और एक्सटेंड होगा. सो ऑल द क्वेश्चंस आर लाइक दिस ओनली. 9th वाला सॉल्व करो. 9th में देखो फिर से 3 कंस्ट्रेंट दी है, ये 1, ये 2 और ये 3. 3 कंस्ट्रेंट के साथ आपको सॉल्व करना है. ओके, वन बॉय इज आस्किंग सर आज सिर्फ LPP. यस, टुडेस टारगेट इज ओनली LPP. Do you want few questions from matrices? Or I will solve last year question paper also I can solve. So which are the topics we have completed? First, differentiation एक complete होगा, AOD complete हो गया. After differentiation and AOD, then we started, then उसके बाद कौन सा होगा, probability, binomial. After that matrices and this LPP. Sir, for matrices please give home assignment. Okay, vectors, ठीक है, वेक्टर लाइन प्लेन, ठीक है, ये चाहिए आपको. ठीक है, उसका भी लेक्चर शेड्यूल कर देते हैं. देखो, सॉल्यूशन सेट फॉर द कांस्टेंट, ये तो आपको आएगा. यहाँ पर x 0 डाल दो, y आएगा 11/2.
5.5. Zero comma 5.5. 5.5, right? Then y0 डाल दो x11. x11 comma 0. So this was first line L1 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. Second line है x 3x. x0 डाल दो. y मिल जाएगा 30/4. So half 15 7.5. 7.5 यहाँ पर आएगा. 0 7.5. Right? और 15 7.5, right? अगर y0 डालोगे x10 है. y0 x10 है. So it will be 10,0. So this was the line 2. ये line 2 3. line 3 क्या आएगी? x0 डाल दो. If you put x0 y6 6 यहाँ पर आएगा बीच में आपका 0,6 और y0 डाल दो. x आएगा 15. x15 ये बहुत लंबा जाएगा यहाँ पर. So this was your third line. तो मुझे बताइए तीनों भी एक देखो पहला वाला जो लाइन है ग्रेटर देन मींस अवे फ्रॉम द ओरिजिन है. लाइन 1 का अवे फ्रॉम द ओरिजिन है. सो फर्स्ट लाइन का अवे फ्रॉम द ओरिजिन था और सेकेंड और थर्ड लाइन का टुवर्ड्स द ओरिजिन था. मींस वहां पर आपका 0 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में, राइट? सो फाइंड आउट द कॉर्नर पॉइंट. सर इंटीग्रेशन का भी डेफिनेट एंड इंडेफिनेट भी. ओके इंटीग्रेशन का भी इंडेफिनेट लेना है, ठीक है, और डेफिनेट भी लेना है. इंडेफिनेट तो शेड्यूल है, डेफिनेट भी लेना है, ठीक. तो आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ आज के लेक्चर में मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो भी टॉपिक है उसके सिनॉप्सिस या उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज में बताने वाला हूं. ओके बिकॉज ये चैप्टर में तो अभी कुछ बचा नहीं है. ओके ठीक है. वेट लेट मी शेयर that PDF so that I can show you here. 1 minute. Is it visible? Let me download first. देखो बेटा ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा दिया है, देन व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा? तो इट विल बी n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इंटू अल्फा. इस टाइप का एक क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, रुको टेक्स्ट बुक में अगर होगा तो. एक मिनट, लेट मी ओपन द MCQs of this topic. 292. चलो cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा दिया है. Then what is the relation between cos 2 theta is equals to sin alpha दिया है. Then the relation A option, B option, C option and D option दिया है, A B C D. So what will be the relation? देखो ये cos 2 theta है, right? और sin alpha है. मुझे बताइए cos और sin जनरल सॉल्यूशन के लिए sin थीटा अगर sin अल्फा है तो थीटा है n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इंटू अल्फा. अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है देन थीटा विल बी
2n pi plus alpha and tan theta is equals to tan alpha है, then theta will be n pi plus alpha. But यहाँ पर तो cos और sin में दिया है, so I can easily convert sin into cos. I know that formula. So can I convert this into cos 2 theta? I'll write here cos 2 theta is equals to cos 90 minus theta pi by 2 minus alpha. थीटा वहां पर अल्फा है, तो मुझे बताए इसे a ले लो या फिर इसे थीटा ले लो और यहाँ पर b ले लो. सो cos a और cos b सेम है, तो रिलेशन क्या है a और b में? a है, पहला मीन्स 2 थीटा है, 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई प्लस अल्फा मीन्स ये b वैल्यू क्या है? पाई बाय 2 माइनस अल्फा. सो दिस विल बी द आंसर. थीटा इज इक्वल्स टू 2n pi plus pi by 2 minus alpha by 2. So if you are getting this option, then this is general solution. Okay. Now next, deleted part general solution. Question आ सकते हैं, अगर आए तो ये करना है. All the synopsis I am explaining. Okay. Now next. जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा cos साइन स्क्वायर थीटा अगर साइन स्क्वायर अल्फा है, या फिर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा है, या फिर tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा है, तो तीनों में भी एक ही कंडीशन है, n पाई प्लस और माइनस अल्फा. ओके, दिस पार्ट इज देयर. ये पार्ट आपको कैलकुलस में भी यूज हो सकता है ना? सिंप्लीफिकेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर सिंप्लीफाई करना है तो ये फॉर्मूला यूज हो सकता है वहां पर, राइट? सो इवन दो इट इज डिलीटेड जनरल सॉल्यूशन, but there are many uses in other topics also. Now next, ये तो एक पेज हो गया. सेकेंड में देखो साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल है. साइन रूल क्या है? इफ कैपिटल एबीसी अगर ट्रायंगल के एंगल है और स्मॉल एबीसी उसके अपोजिट साइड्स है, देन a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c. ये कांस्टेंट होता है, दैट कांस्टेंट इज 2r. और इसे उल्टा भी ले सकते हो, साइन a अपॉन स्मॉल a इज इक्वल टू साइन b अपॉन स्मॉल b इज इक्वल टू साइन c अपॉन स्मॉल c इज इक्वल टू अगेन वन डिफरेंट कांस्टेंट दैट मे बी 1 अपॉन 2r, राइट? सो डिफरेंट फॉर्म्स है. साइन रूल के डिफरेंट फॉर्म्स भी दिए है के अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो. सो दीज ऑल आर साइन रूल्स ओनली. नाउ ये अलग अलग टाइप्स दिए हैं. कोसाइन रूल क्या है? कोसाइन रूल तो आपको पता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a. इसके भी पीडीएफ में दे दूंगा आपके ग्रुप में. अगर ये भी ध्यान रखोगे, एक भी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos, ये एंगल है इसलिए कैपिटल ए. अंडरस्टूड? अगर बी स्क्वायर होगा तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac और ca इंटू कॉस बी, और सी स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos a. So this is cosine formula. Now projection rule. प्रोजेक्शन क्या होता है? देखो, प्रोजेक्शन होता है, सपोज दैट ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो एबीसी के लिए डी, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बीसी क्या होता है? तो बीडी होता है. सो वो प्रोजेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है? ए अगर है तो ए मींस प्रोजेक्शन रूल से ये इक्वेशन मिलेगा, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी. सिमिलरली बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, एंड सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए. हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन हाफ
है s minus b s minus a upon bc. Then cos half एंगल के लिए s minus a upon bc, एंड tan के लिए क्या है, tan half के लिए s minus b s minus a upon s into s minus a, अगर a लेते हो तो b के लिए वैल्यू चेंज हो जाएगी. Theorem's formula already you know, area of triangle is equals to, if ABC are the sides, then S is, if S is semi-perimeter, root of S minus A, S minus B, S minus C. Napier's analogy में है tan B minus C by 2 is equals to B minus C upon B plus C into cot A by 2. ये तो जस्ट एक रिवीजन ले रहा हूं मैं फॉर्मूले का. साइन इनवर्स और साइन अगर बाहर होगा तो वो कट के x बन जाएगा, जहां पर x बिलोंग्स टू -1 to 1. After this, okay, ठीक है, इसके ऊपर है. Few things are there. Wait 1 minute. Note down these formulas. Okay, I will send all these formulae in your WhatsApp group. तो इसमें तो आपको पता है, जैसे कि फर्स्ट साइन इनवर्स और अंदर अगर साइन होगा तो देन कॉस इनवर्स, और कॉस अगर होगा तो कॉस इनवर्स और कॉस हट जाएगा. सिमिलरली कोसेक इनवर्स और कोसेक अगर होगा तो वो हट जाएगा. ये तो इजी है, बताने की जरूरत नहीं थी. नाउ दीज प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट. साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x, मींस साइन को आप उल्टा कोसेक कर सकते हैं इनवर्स फंक्शन में. कॉस इनवर्स के लिए भी वही है सेक. मुझे बताए साइन माइनस थीटा क्या आता है, माइनस साइन थीटा. कॉस माइनस थीटा क्या आता है, कॉस थीटा, राइट. लेकिन माइनस में क्या आता है, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसमें क्या आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है. नाउ दिस, अगर x और y दोनों पॉजिटिव है, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. अगर दोनों पॉजिटिव है, xy एग्जैक्ट 1 है, देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है पाई बाय 2. और दोनों पॉजिटिव है, देन माइनस में क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है. सो यू नोट डाउन दिस. अच्छा, विच साइड ऑफ स्मॉल ए क्या डिसाइड, कौन सी साइड डिनोट करती है बेटा. ट्रायंगल ए बी सी मैंने स्टैंडर्ड ले लिया. देखो ये अगर मैंने कैपिटल ए बी सी ले लिया तो कैपिटल ए एंगल के अपोजिट स्मॉल ए होगी, बी के अपोजिट स्मॉल बी और सी के अपोजिट स्मॉल सी. अंडरस्टूड. लेक्चर एंड होने के बाद रीज्वाइन करना है. लेक्चर एंड कब हो रहा है, 3 बजे हो रहा है. ओके, ऑलरेडी 3:30 हो गया ना. सो एक्चुअली आई थिंक या लेक्चर टाइम तो 1 आवर्स का दिया था, बट मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ उससे. बाय मिस्टेक हुआ होगा, लेक्चर 2 घंटे का है. Okay, only this much was there. Now come to this point, this part.
I think we were solving this 9th question. अभी थोड़ा थियरी बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, देखो till that time you solve that 13th question. After that we will get solve theory based question. Solve this 13th and 14th.
Now my voice is audible. Okay. See, for this question, here if we put x is equals to 0, then y, if we put y 0 first, if we put x is equals to 0, then y 104. So 0 comma 104. If we put y 0, then x will be 52. So 52 comma 0 is here. So this was your line 1. Now second line, if we put x 0, then y will be 76 by 2. So 38, right? So x 0, y 38. If we put y 0, 76. So this is your second line. Now both are less than this, means towards the origin. Means this is your common, this is feasible region where end point, corner points are 0 comma 0. This already you know. Okay, this is 52 comma 0. This point of intersection you have to find. How to find this point of intersection? Just you have to simplify these equations. 2x plus y is equals to 104 and x plus 2y is equals to 76. So अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हो, so it will be 4. इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, so 2, this will be 4, 76 का डबल 152. Now subtract minus 3y. Minus 3y is equals to 152 minus 104. So it will be 8, 1, 4, 48 minus 48. So y will be 16. y 16. तो x क्या आएगा? लिख दो. y 16 अगर है, so 2x is equals to 104. So 2x is equals to 104 minus 16. So what will be the x? x क्या आएगा यहाँ पर? Now you can mute yourself. Yes. What was the answer? Here, what is the point? Yes. Can you tell me? 44. So this was 44. 44 comma 16. 44 comma 6. Right. And this point is 0 comma second line. If we put x 0, 38. Right. So 0, 38 and 44, 16. So for which point you are getting maximum? He has asked maximum. I think for this point only, 44 and 16. Okay. So you put 6 into 44 plus 11 into 16. $440 A, right? Yes, sir. Yeah. So 440 is the answer. So maximum value is 440. Next. So theory based कुछ क्वेश्चन लेंगे हम. मुझे बताइए, the point which there is an attending the optimum value of the objective function R. मुझे बताइए, the points
at which there is an attendance of the optimal value of the objective function are the points of intersection of inequations with both the axes. मुझे बताइए बोथ एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट आता है, मैक्सिमा या मिनिमा आती है क्या? ये फर्स्ट है. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इनइक्वेशंस विथ एक्स एक्सिस ओनली, सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, या फिर द पॉइंट ऑफ इनइक्वेशंस और द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन. ये आंसर होगा आपका द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इनइक्वेशंस. सो कॉर्नर पॉइंट पे ही आपका मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, राइट? सो सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, और भी थियरी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए तो आपको हो, आगे देखते हैं. हाँ, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? यहां पर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आप बताइए. 18th. एटींथ वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एवरी एलपीपी हैज एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन. हर एक एलपीपी के लिए सॉल्यूशन आता है या नहीं? एक हमने क्वेश्चन लिखा था, एरिया बाउंडेड नहीं था, राइट? सो ये पहला तो रॉन्ग है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी एलपीपी होंगे जिसमें सॉल्यूशन सेट नहीं आएंगे. एंड एलपीपी हैज यूनिक सॉल्यूशन. एलपीपी हैज यूनिक सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे सपोज दैट, एक मैं एग्जांपल लेता हूं. ओके, अगर यहां पर और यहां पर ये दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम सॉल्यूशन दे रहा है, इसका मतलब ये हर एक पॉइंट पे मैक्सिमम सॉल्यूशन दे रहा है. इट मींस इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. अंडरस्टूड? सो एक एलपीपी पे एक ही सॉल्यूशन होगा ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट, क्योंकि दो पॉइंट पे अगर दे रहा है और ये यहां पर पॉइंट्स है, so for all these point he is giving the same answer which is maximum or minimum. तो ये भी wrong है, ये भी wrong है. then हमें true find होगा. if an LPP has two optimum solution then it has infinitely many solutions. means जो मैंने अभी केस बताया, two solution है तो infinite many, means ये C option correct है, provided D option अगर wrong होगा तो. every LPP has two optimum solution, ये भी wrong है. So C option correct है. Okay. Next, which of the following sets are convex? Convex कौन से है इसमें? Which of the following set is not convex? सभी convex है, ये mod वाला मॉडुलस वाला convex नहीं है. Okay, क्योंकि दो आंसर देता है. Next, 20th वाला देखो. For the LPP, there are how many constant? 2. The number of feasible solutions points is what? मीन्स यहाँ पर मैक्सिमा कितने पॉइंट पे आ रहा है? एक पॉइंट पे आ रहा है या इनफाइनाइट, या दो या तीन? सो यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. अगर एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा दे रहा है, इट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट. अंडरस्टूड? सो 20 you can easily solve. Now solve 21, 22, 23 and 24. ट्वेंटी वन 22 सॉल्व कीजिए. 21 तो मैंने बताया था अभी. 22, 23.
22 में देखो, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिया है, राइट? सो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। So you have to check whether it is greater than equals to 0 or greater than equals to or less than equals to that constant. ट्वेंटी थर्ड में देखो, यहाँ पर तीन कांस्टेंट है, राइट? इसमें से ये कांस्टेंट क्या है? एक लाइन है, ये भी कांस्टेंट लाइन है। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं हुआ था इसके पहले। सो यू ट्राई टू सॉल्व 23rd आल्सो। एनी डाउट? 22 का आंसर बी लिख रहे हैं। यस 22 आंसर देखो 22 का। अगर मैं x0 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो y6, ओके हियर xy, ओके x0 y6, y0 x3, now for second x0 y4 y0 x4, this is line 1, this is line 2। दोनों का अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, मिस कौन सा रीजन आएगा? देखो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, पहले का भी L1 का अवे फ्रॉम द ओरिजिन था, सेकेंड का भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। सो दोनों में फिजिबल रीजन कौन सा आएगा? फिजिबल रीजन आपका ये आएगा। अंडरस्टूड? ये और इसके ऊपर इनफाइनाइट। सो मिनिमम एट द पॉइंट, मिनिमम कौन से पॉइंट पे होगा? ये पॉइंट पे फाइंड आउट करो। ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है, ये 3 कॉर्नर पॉइंट है, राइट? सो दिस वाज योर x 4,0, दिस वाज 0, अच्छा दिस वाज 0,4, राइट? 0,6 पे है। सो 0,6 एक पॉइंट है, देन 4,0 है, एंड थर्ड वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो इट इज 2x + y = 6 एंड 2x मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो 2y = 8। So if I'll subtract, then I'll get -y = -2, y2 आएगा। अगर y2 है तो x क्या आएगा? So 2x + 2 = 6. So x will be 2. So 2 2 है ये पॉइंट। So कौन से पॉइंट पे मिनिमम सॉल्यूशन दे रहा है वो सब फाइंड आउट करो। ओके ठीक। 21 को इनफाइनाइट आ रहा है। वन बॉय इज टेलिंग 21 को इनफाइनाइट। देख लो, दिस इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, दिस इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। 0 है या इनफाइनाइट है? देखो अगर कॉमन इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है तो 0 होगा। सो 21 एंड 22 आंसर। ट्वेंटी वन का है सी, 22 का है बी। 21 का है सी 0, मैं वही बोल रहा था। 21 का सी ये नहीं आएगा। अगर कॉमन इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, कॉमन है तो उसका 0 सॉल्यूशन।
22nd B, 23rd A. Solve 24 and 25th. Yes, any doubt in 24 and 25th? If you have any doubt, you can write in chat box. 24th में क्या दिया है? दोनों भी away from the origin है, greater than constant है, right? Away from the origin है, non-negative restrictions दिए, right? So what is the minimum of this LBP? 24th का student are writing B. Okay. ग्राफ ड्रॉ करो, आ जाएगा. So let's check 24. Minimum of this point of this LPP. What is given? X plus y 7 है, 0 अगर डालोगे तो 7 आएगा. Y ये भी 7,0, right? Y0 डालोगे तो X 7 आएगा. यहाँ पर if you put X0 Y10, X0 Y10, if you put Y0 X4, so first line was this. इसका क्या था? Away from the origin था. Second line was this. इसका भी away from the origin था. So your feasible region is this. First quadrant में है, तो ये common point find out करो. पहला point तो हो गया Z 7,0, Z at 0,10 and Z at वो जो corner point है, you have to solve these linear equations. X plus y is equals to 5. Sorry, 24th. X plus y is equals to 7 and 5x plus 2y is equals to 20. If I'll multiply this by 5, so 5, 5, 35. So 3y is equals to 20, 35 में से गया 15, y आ गया 5. If y is 5, then x is 2. 2,5. So your function is 12x plus 20y. So इस point पे आएगा, सिर्फ x रख दो. 12 into 7, 84. 10 अगर substitute करते हो 20 है तो 400. If you put here, minimum पूछा है 2,5. ये 24 plus 100 नहीं 80, 5 to the 10, 100. So it will be 125. So 84 is the minimum. Okay. 25th no solution. 25th के लिए आंसर है क्या? नो सॉल्यूशन देखो. Yes. Okay.
I hope you understood this part. हाँ, PYQ के लिए देखो, ये तीनों भी क्वेश्चन बहुत इजी है. मुझे बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे. Is it visible? दिख रहा है? Write in the chat box. Now I think it is visible. Okay. Now see, these were the question. This was asked in 2008. The shape of the region determined by. देखो यहाँ पर कंस्ट्रेंट दी है 1, 2 और 3. यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा पूछा नहीं है. सो जस्ट यू हैव टू ड्रॉ द लाइंस. तो आपको इस टाइप का, सपोज दैट आपको इस टाइप का मिल रहा है, राइट? सो व्हाट इज दिस शेप? सपोज दैट ये फिजिबल रीजन है, सो इट मे बी ट्राइंगल. ओके, इसका आंसर अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल लिख दो, क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल, राइट? नाउ 27 ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, कंस्ट्रेंट भी दिए है, राइट? एंड दे हैव आस्क्ड द मैक्सिमम वैल्यू of this LPP. You can easily solve such kind of questions. Already we have seen, we have solved. Now the maximum value of this function, this constraint, and this is objective function. This also we have done. Now again the optimum value for this subject to this constraint. Maxima या minima find out करो, उसमें से जो भी दिया है, right? यहाँ पर mention नहीं किया है. So find out, it will be the maximum point, maximum of this function. Okay, so in this way we have finished this topic. This was very small topic. I will send the PDF of this. Any doubt? If you have any doubt, write in the chat box. Our time is over. Sir, in so many years, only 4 questions. Okay. बेटा यहाँ पर 2008 to 2011 तक दिया, right? So 8 में एक पूछा था, 9 में पूछा है, 10 में भी पूछा है, 11 में भी पूछा है. Means only 4 years. Means every year they are going to ask one question from this topic. Understood? Understood? Yadhan. Okay. So, sir, do we need to rejoin again? No, now I think you have chemistry lecture today, right? At 4:15. So thank you very much, and we will meet in next lecture.